ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ان کا قد کم از کم 6 فٹ تو ہوگا، اور آنکھیں دیکھو کتنی خوبصورت ہیں بندے کی۔ پرسنالٹی میں بات تو ہے۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے سیرت کو کوہنی ماری تھی، وہ جو پارٹی میں بھی موبائل پر ٹیسٹ دیکھنے میں مصروف تھی۔ ہانیہ کی اچانک کوہنی مارے جانے پر ہڑبڑا گئی، غصے سے ایک نگاہ ہانیہ پر ڈالی جو چیف گیسٹ کو گھورنے میں مصروف تھی۔ ہانیہ، ذرا سی جو شرم ہے نا تم میں تو وہ کر لو، تمیز نام کی کوئی چیز نہیں تم میں، صبح سے اس بیچارے کو گھورے جا رہی ہو۔ سیرت نے چبا چبا کر ایک لفظ ادا کیا تھا، مگر وہ کہاں سننے والی تھی۔ تم ایک بار دیکھو تو صحیح، تم تو ایسے نظریں جھکائے دیکھنے میں شرما رہی ہو جیسے وہ تمہارا مستقبل کا ہونے والا دولہا ہو۔ ارے بھائی، انسان ہے، بطور چیف گیسٹ آیا ہے، اس کو دیکھنے میں تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ہانیہ نے اسے سمجھانا چاہا تھا، مگر شرم سے اس کی گال سرخ ہونے لگے تھے۔ وہ خود پر قابو پاتے ہوئے ہانیہ کو گھور کر رہ گئی۔ ہانیہ بے شرمی سے اپنی بدتیسی کی نمائش کرنے لگی، جبکہ سیرت نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ ہانیہ نے سیرت سے درخواست کی تھی کہ آج تو پارٹی ہے، تم کلر ڈریس میں آنا، دونوں مل کر بہت سی تصویریں بنائیں گے، مگر سیرت نے اس کی ایک نہ سنی۔ آج بھی وہ خود کو عبائے میں چھپا کر آئی تھی۔ تبھی گرمی سے بے حال ہو کر سیرت کہنے لگی، 1 منٹ میں واش روم میں جا کر اپنا حجاب سیٹ کر کے آتی ہوں، تم یہی میرا انتظار کرنا۔ ہانیہ نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ چپ چاپ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے یونیورسٹی کی بلڈنگ تک آئی، جو گراؤنڈ سے کافی دور تھی۔ یہاں اسے پارٹی کا مدھم شور سنائی دے رہا تھا۔ وہ گراؤنڈ جس میں پارٹی کے انتظامات کیے گئے تھے، وہاں گانے کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ واش روم گئی تو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو چیف گیسٹ کا سیکرٹری اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ رک گئی، اسے ڈر لگ رہا تھا۔ اسے خود پر غصہ آنے لگا کہ ہانیہ کو ساتھ لے کر آنا چاہیے تھا۔ وہ ڈرپوک لڑکی 2 پل کے لیے سہم گئی تھی، مگر پھر خود کو مضبوط بناتے جلدی سے واش روم میں گھس گئی۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا تو سیڑھیوں پر ابھی تک وہ آدمی کھڑا تھا، جیسے اس کے انتظار میں ہو۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا اور اندر کھڑے ہو کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اسے گھبراہٹ سی ہو رہی تھی، ایک انجانے خوف نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ 15 منٹ بعد وہ جیسے ہی سیڑھیاں اترتے ہوئے پہلی منزل پر آئی تو سامنے اس آدمی کو کھڑے ہوئے پایا۔ شاید وہ اسی انتظار میں کھڑا ہوا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتی ہوئی جلدی سے وہاں سے گزر جانا چاہتی تھی، مگر تبھی وہ آدمی کہنے لگا، میڈم بات سنیں۔ خوف کے مارے اس کے پورے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ تبھی وہ بغیر کچھ بولے مڑی اور سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ آدمی قریب آیا اور کہنے لگا، کیا آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ سیرت نے نفی میں سر ہلایا اور وہاں سے جانے لگی، مگر وہ آدمی بہت ڈھیر تھا۔ اس کے سامنے بازو کرتے ہوئے وہ اسے جانے سے روک چکا تھا۔ وہ سہم گئی۔ تبھی وہ آدمی کہنے لگا، آپ مجھے مثبت جواب دیے بنا یہاں سے نہیں جا سکتی۔ سیرت کو غصہ آنے لگا، وہ چلاتے ہوئے کہنے لگی، ایک بار کہا ہے نا کہ میں نے نمبر نہیں دینا۔ کپکپاہٹ اس کی آواز سے واضح محسوس کی جا سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آدمی اس پر آسانی سے حکم چلا رہا تھا۔ میں نے نہیں بلکہ احمد درانی نے آپ کا نمبر مانگا ہے، جو اس فنکشن کے چیف گیسٹ بھی ہیں۔ یہ سن کر سیرت کو غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگی، چاہے وہ کچھ بھی بن کر ہمارے کالج میں آ جائیں، میری نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں، پلیز یہاں سے چلے جائیں۔ بلکہ میں ہی چلی جاتی ہوں۔ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے وہ جانے لگی جب وہ آدمی کہنے لگا، آپ انکار کر کے اچھا نہیں کر رہی، شاید آپ احمد درانی کے نام سے واقف نہیں ہیں، اگر ہوتی تو یہ حماقت کرنے کی کوشش نہ کرتی، آپ پچھتائیں گی۔ یہ کہہ کر وہ آدمی وہاں سے چلا گیا۔ سیرت کو غصہ آنے لگا کہ وہ اسے دھمکانے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے وہ بغیر سوچے سمجھے جب اس آدمی کے پاس سے جانے لگی، مگر اس سے پہلے احمد درانی اس آدمی تک پہنچ گیا۔ لڑکی کا انکار سن کر اسے خود پر غصہ آنے لگا۔ وہ آگے بڑھا۔ سیرت پہلی بار ڈری نہیں بلکہ ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ غصے سے لال ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گھورنے میں مصروف تھا۔
जब हानिया वहां आ पहुंची। अहमर दुरानी को सीरत के साथ देखकर उसे हैरत हुई थी, मगर अहमर के तासुरात बता रहे थे कि कुछ तो हुआ है। वो जल्दी से सीरत की तरफ आई और उससे पूछने लगी। तभी अहमर कहने लगा, तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। जल्दी बताओ, चंद दिन मेरे साथ गुजारने का कितना लोगी? शायद उसे कोई गलत फहमी हो गई थी, इसीलिए एक अनजान चेहरे के सामने वो इतनी बड़ी बात कह गया था। हानिया ने तो ये बात सुनकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया था, जबकि गुस्से से सीरत की दिमाग की रगें फटने लगी। उसने एक जोरदार तमाचा अहमर के मुंह पर दे मारा और रोते हुए वहां से गेट की तरफ चली गई। हानिया भी उसके पीछे पीछे जाने लगी, जबकि वो नहीं जानती थी कि उसने कितने बड़े तूफान को दावत दे दी थी। अब्बा, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, यह नामुमकिन है। सीरत ने रोते हुए बाप के सामने हाथ जोड़े, जो शराब के नशे में धुत खुलती बंद होती आंखों के साथ अपनी सगी बेटी को हुक्म सुना चुका था। अब्बा, आपको पैसे चाहिए ना, मैं आपको लाकर दूंगी पैसे, मगर मेरी इज्जत को ऐसे पामाल मत कीजिए, मैं मर जाऊंगी। सीरत बाप के पांव पड़ गई, मगर वो जालिम शख्स अपने नशे की हालत में अपनी बेटी को बेचने की बातें कर रहा था। भाड़ में गया तेरा पैसा, मैं जुए में तुझे हार चुका हूं। अब तेरा मालिक मेरा यार सलीम है, दफा हो जाए यहां से। अगर मेरी नजरों के सामने रही तो मैं तेरा गला दबा दूंगा और सामने वाले नाले में फेंक आऊंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि भगोड़ी माँ की ये बेटी आखिर गई कहां। फुरकान अहमद ज्यादा पीने की वजह से अपने होशो हवास खो चुके थे। ऐसे में जब उसके दोस्त सलीम ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखते हुए उसकी बीवी का जिक्र किया तो वो तिलमिला उठा। सारी जिंदगी वो अपनी बेटी से इसीलिए नफरत करता रहा था क्योंकि शादी के अव्वलीन दिनों में उसकी बीवी घर से भाग गई थी। सलीम ने अपना दाव चला दिया था। वो कब से सीरत पर बुरी निगाह रखे हुए था और आज मौका था कि वो फुरकान अहमद को जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करके उसकी बेटी को आसानी से हासिल कर सकता था, और उसकी चाल कामयाब ठहरी। फुरकान अहमद अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर बेटी को रुखसत किए जबरदस्ती अपने दोस्त को थमाने को तैयार थे, जो उसे गलीज नजरों से घूर रहा था। तेरी माँ भी ऐसे ही नाफरमान थी जैसी तू है, तुझे पता है तू हूबहू अपनी माँ के जैसी है। फुरकान अहमद ने लड़खड़ाते हुए चंद जुमले अदा किए थे। वो रो रही थी, उसे सिर्फ अपने बाप का सहारा था और अब वही उसकी इज्जत का दुश्मन बना हुआ था। अब्बा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ। आपको तालीम नहीं पसंद, मैं पढ़ना छोड़ दूंगी, मगर मुझे बेचो तो मत। मैं तुम्हारी सगी बेटी हूँ। होश में आए अब्बा, ऐसा करके आप खुद बाद में पछताएंगे। वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि किसी तरह अपने बाप को इस बात पर कायल कर ले। तभी सलीम खबासत से मुस्कुराते हुए उसकी जानिब बढ़ने लगा। उसका बाप ज्यादा पीने की वजह से वहीं लड़खड़ाते हुए फर्श पर ढेर हो गया। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। सलीम चेहरे पर फिरौनियत लिए उसकी जानिब बढ़ रहा था। वो रोते हुए खुद को चादर में ढांपे एक एक कदम पीछे ले रही थी। इन हालात को देखते हुए उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। उसके जहन में वहीं एक जुमला गूंज रहा था, भगोड़ी माँ की बेटी। तभी थोड़ी देर खुद को रिलैक्स करते ही उसका दिमाग चलने लगा। उसने पूरी कुव्वत से सलीम को धक्का दिया, जो पहले ही नशे की वजह से लड़खड़ा रहा था। वहीं से वो भागते हुए घर से निकल गई। उसके कान में अभी तक उसके बाप के अल्फाज गूंज रहे थे। वो अपनी माँ के बारे में जानना चाहती थी, मगर उसके वालिद हमेशा उसे चुप करा देते। जमीना बेगम का जिक्र सुनते ही वो गुस्से से कांपने लगते और बेटी पर हाथ उठाने से भी बाज ना आते। उसके पांव चप्पल ना पहनने की वजह से जख्मी हो चुके थे, मगर उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी। वो अंधाधुंध सड़क पर भाग रही थी, एक वीरान सड़क जहां पर रात के इस पहर कोई जीरो मौजूद नहीं था। ऐसे में वो 20 साल की लड़की खुले बालों के साथ बगैर दुपट्टे के सड़क पर भागे जा रही थी, जैसे सड़क का इख्तिताम ही उसकी मंजिल का तयन करेगा। आंसुओं से उसका चेहरा भीग चुका था, पसीने से शराबोर। वो बार बार हाथों से आंसुओं को साफ करते हुए सड़क पर भागने लगी। उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है। उसे बस इतना मालूम था कि उसे अपनी इज्जत बचानी है। सुबह उसने अहमर दुरानी को थप्पड़ मारा था और शाम में ये वाकया हो गया।
اس کا دماغ اس قدر سن ہو گیا کہ بس وہ بھاگتی جا رہی تھی۔ تب دور سے آتی ہوئی لائٹوں نے اسے آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر دیا۔ رفتار میں کمی آ چکی تھی، لیکن وہ گاڑی اتنی اسپیڈ میں تھی کہ سامنے آتی لڑکی کو نہ دیکھ سکی، اور پھر ایک زوردار تصادم ہوا جس نے سارے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک دل خراش چیخ اپنی پوری قوت سے گونجی اور پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ جب اس کو ہوش آیا تو ایک ہسپتال میں تھی۔ بھاری ہوتے سر پر ہاتھ رکھے وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ ارد گرد کا جائزہ لیتے ہی وہ مطمئن ہو گئی کہ اب اس کی عزت کو کوئی خطرہ نہیں۔ ہسپتال کے بیڈ پر لیٹے ہوئے اسے محسوس ہونے لگا جیسے کوئی متواتر اسے گھور رہا ہے۔ اس نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی اور ایک بار پھر سامنے کی طرف دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اپنے ساتھ والے بیڈ پر اس کی نظر گئی تو اس کی آنکھیں وہیں تھم گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ احمر درانی کو اپنے سامنے دیکھ رہی ہے۔ وہ ڈر گئی تھی۔ اسے لگا کہ آج اس کی خیر نہیں۔ ایک مصیبت سے جان نہیں چھوٹی تھی کہ دوسری پریشانی اس کے سامنے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں میچیں اور بیڈ پر آرام سے لیٹ گئی جیسے اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ تبھی نرس کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ احمر درانی سے کہنے لگی، ان کے سر پر معمولی سی چوٹ آئی ہے، ٹینشن اور پریشانی کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی تھی، آپ ان کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ جلدی سے بیڈ پر اٹھ گئی اور کہنے لگی، میں ان کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی۔ اس بات پر احمر درانی کے تیور بدلے تھے۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی جانب بڑھنے ہی والا تھا جب سلیم، اس کے والد کا دوست، کمرے میں داخل ہوا اور آتے ساتھ ہی کہنے لگا، بیٹی مجھے معاف کر دو، میں تمہاری شادی زبردستی نہیں کراؤں گا، بس تم گھر چلو۔ بھلا باپ سے بھی کوئی ناراضگی ہوتی ہے؟ پہلے تو سیرت کو اس بات کی سمجھ نہ آئی، مگر خود کو احمر درانی کو سونپنے سے اچھا تھا کہ وہ چچا سلیم کے ساتھ چلی جائے۔ ممکن تھا کہ وہ وہاں اسے اپنے والد کے گھر چھوڑ دے۔ اس نے سوچا وہ چچا کو سمجھا لے گی کیونکہ وہ اس وقت نشے میں تھے، اس لیے ایسی باتیں کر رہے تھے، مگر حقیقت میں وہ ایسے نہیں تھے۔ اسے اس بات کا اعتبار تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور آگے بڑھ کر کہنے لگی، ابا میں آپ کے ساتھ گھر چلوں گی، آپ جس سے کہیں گے میں شادی کر لوں گی۔ وہ دونوں اداکاری کر رہے تھے اور یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ احمر درانی غصے سے سلیم کی جانب بڑھا اور اس کا گریبان پکڑتے ہوئے کچھ کہنے ہی والا تھا جب پولیس والے اندر داخل ہوئے۔ مجبوراً اسے تھوڑی دیر کے لیے رکنا پڑا۔ وہ ہسپتال میں کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس بوڑھے کو بعد میں سبق سکھائے گا، اور سیرت کو تو وہ ویسے بھی چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اس کے کئی آدمی اس لڑکی پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اس نے سلیم کا گریبان چھوڑا اور غصے سے بیڈ کو پاؤں مارتے ہوئے کمرے سے ہی نکل گیا۔ سیرت نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ پولیس والے کسی اور کیس کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے۔ جب دو لوگوں کو ایک دوسرے کا گریبان پکڑے دیکھا تو خیریت معلوم کرنے چلے آئے۔ سلیم ہنستے ہوئے ان سے بات کرنے لگا۔ سیرت کے پاس یہی موقع تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ نکلے۔ اس کے بالکل پاس ہی کمرے کا سوئچ بورڈ تھا۔ اس نے جلدی سے سارے بٹن بند کر دیے۔ سب لوگ چونک گئے۔ کمرہ اندھیرے میں نہا گیا۔ کمرے میں موجود سب لوگ سوئچ بورڈ ڈھونڈنے لگے، لیکن سیرت وہاں سے بھاگ نکلی۔ اس نے اچھے سے اپنا چہرہ ڈھکا اور وہاں سے چلی گئی۔ اسے معلوم تھا سلیم چچا اس کا پیچھا ضرور کریں گے، اس لیے وہ عارضی ٹھکانہ ڈھونڈ رہی تھی تاکہ وہ یہاں سے چلے جائیں۔ نہ جانے احمر درانی اس کے پیچھے کیوں پڑا تھا، وہ تو اسے جانتی تک نہیں تھی۔ آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے وہ جلدی سے ہسپتال سے نکلی۔ تبھی عجلت میں اس کا ٹکراؤ ایک عورت کے ساتھ ہوا جو خوب بند سنور کر ہسپتال میں داخل ہو رہی تھی۔ تبھی اس نے سیرت کو دیکھا اور پوچھنے لگی، لڑکی اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ کیا تمہیں کوئی مدد چاہیے؟ سیرت کو اور کیا چاہیے تھا؟ اس کو لگا وہ عورت اس کی مدد کر سکتی ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ڈر اور گھبراہٹ کے مارے اس کے منہ سے کچھ بولا نہیں گیا۔ اس نے اس عورت پر صرف اسی لیے اعتبار کیا کیونکہ وہ عورت تھی، ورنہ انجان لوگوں پر اس طرح کون بھروسہ کرتا ہے؟ عورت تو چاہتی ہی یہی تھی کہ وہ لڑکی خود اس کے ساتھ جانے پر راضی ہو جائے۔ اسے سلیم نہیں بھیجا تھا، وہ کوئی اور نہیں، شہر کے مشہور کوٹھے داستان کی مالکن تھی۔
सलीम ने पहले ही कुछ तस्वीर सुनहरी को दे दी थी। वो सीरत से वाकिफ थी। सीरत उसे कुछ ज्यादा ही पसंद आई थी। वजह उसकी कम उम्री थी। वो मुंह में पान रखते हुए उसे गाड़ी तक ले आई और फिर गाड़ी किसी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। एक ऐसा मोहल्ला जहां लोग दिन के वक्त जाना पसंद नहीं करते। वो शरीफ ज़ादी वहां पहुंच गई। वहां पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि वो सलीम चचा के घर से भी ज़्यादा गलीज़ जगह पर आ पहुंची है। उसने बेयकीनी से उस औरत की जानिब देखा। सुनहरी ने उसकी जानिब देखने की बजाय अपनी नज़रें सामने टिकाई रखी। ज़बरदस्ती सीरत का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए अंदर ले जाने लगी। सीरत ने भागने की बहुत कोशिश की मगर बेबस हो गई। उस औरत के 4 गार्ड्स भी उसके साथ थे। सीरत जोर से रोने लगी क्योंकि ये सब उसका अपना किया धरा था। अगर वो इस औरत पर यकीन ना करती तो आज उसे गंदी गली की जीनत ना बनना पड़ता। उसे बड़े हॉल में ले जाया गया जहां उसकी बोली लगाई जानी थी। सुनहरी बेगम यही तो करती थी। अगर उसे अपना फ़ायदा किसी लड़की को बेचने में होता तो वो उसे बेच दिया करती थी। उसे सलीम पर भरोसा नहीं था। आज तक वो जितनी भी लड़कियां लाया था उनमें से ज़्यादातर तो भाग गई थी या अक्सर ने खुदकुशी कर ली थी। वो चाहती थी कि जल्द अज जल्द इस मुसीबत को अपने सर से टाल दे। रोते हुए उसे जब स्टेज पर लाया गया और उसकी नज़र सामने बैठे लोगों पर पड़ी तो वो हैरान रह गई। उसके वालिद भी वहाँ मौजूद थे और उसके साथ सलीम चचा भी बैठे थे। वो रोने लगी। उसका दिल चाहा सलीम के टुकड़े टुकड़े कर दे। बेबसी से वो स्टेज पर खड़ी रही। तभी बोलियां शुरू हुईं। बोली की शुरुआत सुनहरी बेगम ने 8 लाख से की। मजमे में फनबनाहट शुरू हो चुकी थी। उसके वालिद नशे में धुत कुर्सी पर बैठे थे जैसे कि वो कुछ समझ ही ना पा रहे हों। उसका दिल चाहा दौड़कर अपने वालिद के पास चली जाए और उसे समझाए कि वो अच्छा नहीं कर रहे, मगर वो इतने सालों से समझाती आ रही थी। आज तक उन्होंने इस बेटी को बेटी समझने की कोशिश ही नहीं की थी। अपनी आने वाली जिंदगी का सोच कर ही उसने अपनी आंखें मींच लीं। तभी फुरकान अहमद को होश आया। सलीम कब से उसे नशे और ड्रग्स जैसी बुरी आदत का आदी कर रहा था। 2 दिन का पुराना नशा टूटा तो फुरकान अहमद ने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। गैरत ने जोश मारा। सामने बेटी को खड़े पाया तो हैरान रह गया। अभी वो होश में आया ही था जब उसे अपने पास सलीम दिखा। उसने बेयकीनी से सलीम को देखा और फिर सामने स्टेज पर खड़ी हुई लड़की को देखकर उसे बात समझने में 1 सेकंड भी नहीं लगा। उसने सलीम का हाथ झटका और जल्दी से स्टेज पर जा पहुंचा। अपनी बेटी का हाथ थामा और उसे लिए वहां से जाने लगा। सीरत बाप को होशो हवास में देखकर रोने लगी। उसे यही उम्मीद थी कि उसके वालिद उसे मायूस नहीं करेंगे। वो दोनों जा रहे थे जब सुनहरी बेगम आगे बढ़ी और कहने लगी, ए बुढ़े, कौन है तू? लड़की को लेकर कहाँ जा रहा है? ये मेरी अमानत है। अगर यकीन नहीं आता तो सलीम से पूछ ले। इसने मुझे 10 लाख में बेचा है। सुनहरी बेगम शदीद गुस्से में सलीम को घूरते कहने लगी, जो मामलात को ख़राब होता देखकर वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। सीरत को लगा उसका बाप कमज़ोर है, वो सुनहरी बेगम के सामने टिक नहीं सकेगा। मगर तभी एक थप्पड़ की आवाज़ ने वहाँ बैठे हर इंसान को खामोश करवा दिया। फुरकान अहमद ने सुनहरी बेगम के मुंह पर एक थप्पड़ मारा और अपनी जेब में पड़ी हुई बंदूक निकाली। सब लोग डर गए। सुनहरी बेगम बेयकीनी से गाल पर हाथ रखे हकलाते हुए कहने लगी, ये तुम क्या कर रहे हो? पागल वागल तो नहीं हो गए? तभी फुरकान अहमद अपनी बेटी को लिए सबको बंदूक के इशारे से खामोश करवा कर वहां से निकल पड़े। घर आकर उन्होंने बेटी को कह दिया, जल्दी से पैकिंग कर लो, हम यहाँ 1 मिनट नहीं रुकेंगे। बाकी बातें बाद में करेंगे, जल्दी करो। जो उठाना है उठा लो, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, वो लोग पहुँचने वाले होंगे। सीरत रोते हुए मोहब्बत पाश नज़रों से बाप को देखने लगी, जिसने 20 साल में पहली बार उसकी फिक्र की थी। उसने जल्दी से अपना मुख्तसर सामान बांधा। वो लोग घर से निकलने ही वाले थे जब 2 काली गाड़ियां उनके सामने आ रुकी। सीरत ने डर के मारे 2 कदम पीछे लिए। तभी फुरकान अहमद ने उसका हाथ थाम लिया और उसे पकड़कर उस गाड़ी में बिठा दिया।
वो बेयकीनी की कैफियत में बाप को देखने लगी। तब उसका बाप कहने लगा, परेशान मत होना, मैं तुम्हें महफूज हाथों में सौंप रहा हूं। जल्द ही मामलात संभलने के बाद मैं तुम्हें वहां से ले आऊंगा। सीरत ने बाप का कहा मान लिया। अगर वो नशे में होता तो वो हरगिज उसका कहा ना मानती, मगर जब से उसने होश संभाला था, पहली बार उसने अपने बाप को बगैर नशे के देखा था। उसे उसकी बात पर पूरा यकीन आ गया था। वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया गया। 5 मिनट वो लोग वहीं बैठे रहे। खौफ के मारे उसके हाथ पांव कांप रहे थे। पसीने से उसका चेहरा शराबोर था। उसने अचानक खिड़की के बाहर देखा तो गाड़ी का ड्राइवर एक बहुत बड़ा बैग उसके बाप को थमा रहा था। उसे तजस्सुस हुआ कि आखिर उस बैग में क्या है, मगर वो उस वक्त इतनी परेशान थी कि वहां से हिल भी ना पा रही थी। ऐसे में वो अपने बाप को बुलाकर क्या पूछती। उसने सोचा इसी ड्राइवर से पूछ लेगी और चुपचाप बैठी रही। जब ड्राइवर आया और गाड़ी चलाने लगा, आपने मेरे बाबा को बैग में क्या दिया? उसने डरते डरते सवाल किया, मगर सामने मौजूद शख्सियत ने कोई जवाब ना दिया। इसने 6 से 7 बार यही सवाल दोहराया और उसे मायूसी का सामना करना पड़ा। वो आदमी खामोशी से अपना काम कर रहा था। उसने जितने भी सवाल पूछे वो आदमी एक का भी जवाब ना दे पाया। तभी गाड़ी वीरान रास्तों पर रवाना हो गई। गाड़ी को रास्ते में रोका गया। एक बूढ़ी 50 साल औरत कार में दाखिल हुई। उसने सीरत के नाक के करीब कोई कपड़ा किया, जिसे सूंघते ही वो बेहोश हो गई। अभी तो वो हैरत से इस औरत को देख रही थी और उस औरत ने फुर्ती दिखाते बेहोशी की दवा वाला कपड़ा उसकी नाक पर रख दिया। वो समझ ही न सकी और अपने होशो हवास से बेगाना होकर उस औरत की गोद में झूल गई, जिसका नाम फरखंदा बेगम था। जब उसे होश आया, पहले तो वो कुछ समझ ना सकी और चारपाई पर पड़ी छत को घूरती रही। कमरे में अंधेरा था। एक खिड़की खुली हुई थी, जिसकी वजह से कमरा 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ अंधेरा था तो दूसरी तरफ हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। हवास बहाल होते ही वो डर के मारे उठ खड़ी हुई और इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी। जैसे ही उसने फर्श पर पांव रखे, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी मिट्टी के टीले पर खड़ी है। शायद कमरे की बहुत अरसे से सफाई नहीं की गई थी। वो संभल कर आहिस्ता से चलते हुए खिड़की के पास आई। देखा तो सहन में वही औरत मौजूद थी। उसने दरवाजा खोलकर बाहर जाना चाहा तो बाहर से दरवाजे को ताला लगा हुआ था। वो दौड़कर खिड़की के जानिब आई और उस औरत को बुलाने की कोशिश करने लगी। वो औरत ऐसे जाहिर कर रही थी जैसे वो बहरी हो और उसे सीरत की आवाज सुनाई न दे रही हो। तभी उसे दरवाजे के बाहर हलचल महसूस हुई। वो दौड़कर दरवाजे के पास आई। उसे लगा शायद वो औरत दरवाजा खोल रही है, मगर जैसे ही दरवाजा खुला और इतनी देर अंधेरे में रहने के बाद जब रोशनी उसकी आंखों से टकराई तो वो देख नहीं पाई। आंखों पर हाथ रखते हुए वो आहिस्ता से आंखों को खोलते सामने देखने लगी। वो बगैर खुद पर सब्र किए अहमद दुरानी के जाने बढ़ी और उसे कहने लगी, चाहते क्या हो तुम? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? वो हलक के बल चीखी थी। मुकाबिल वजूद में कोई हरकत पैदा ना हुई, बल्कि वो कमरे में दाखिल हुआ और कमरे को अंदर से ताला लगाने लगा। सीरत घबरा गई और उसके सामने आते पूछने लगी, दरवाजे को ताला क्यों लगा रहे हो? और तुम ये मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? जाओ यहां से। उसकी आवाज में कपकपाहट थी। अहमद दुरानी के चेहरे पर तासुरात सर्द हो चुके थे। मैं पूछ रही हूं तुम यहां क्या करने आए हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा अभी? उसने अहमद दुरानी का गिरेबान पकड़ा था जब उसने उसकी कलाई पकड़ते एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। वो बेयकीनी से उसे घूरने लगी। उसकी जबान बंद हो चुकी थी। मैं तुम्हारा मालिक और तुम मेरी गुलाम हो। तुम्हारे बाप ने तुम्हें मेरे हाथों बेच दिया है। जानती हो तुम्हारे सगे बाप ने तुम्हारी कितनी कीमत लगाई है? 15 लाख। उसने तुम्हें 15 लाख में मुझे बेच दिया है। लफ्जों को चबाते हुए उसने सीरत की आंखों में आंखें डाले उसे जवाब दिया। ये सुनते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी रूह जिस्म के साथ छोड़ चुकी हो। वो लड़खड़ाते हुए नीचे बैठ गई। उसे वो काला बैग याद आने लगा जो उस ड्राइवर ने उसके सामने ही उसके बाप को दिया था।
5 मिनट वहीं बैठने के बाद वो जल्दी से उठ खड़ी हुई और अहमद दुरानी का मुकाबला करते कहने लगी, मैं कोई चीज नहीं हूं जिसे तुम खरीद लोगे। वो गुस्से से चिल्लाई, पर अगले लम्हे मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ से जमीन पर औंधे मुंह गिरी। तुम्हारा बाप तुम्हें बेच चुका है, और मैं जब एक चीज की कीमत अदा कर दूं तो उसे खत्म तो कर देता हूं, पर आजाद नहीं करता। वो ब्लैक वर्ल्ड में राज करने वाला खतरनाक डॉन अहमद दुरानी था। उसे वैसे भी औरत जात से नफरत थी। अहमद की बात पर उस पर्देदार लड़की ने बेख्तियार उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और कहने लगी, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मैं तुम्हारी रखेल बनूं। इतना शौक है तो अपनी माँ बहन को क्यों नहीं रख लेते। ये कहते ही अहमद दुरानी ने उसके मुंह पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। थप्पड़ पड़ने की वजह से गर्म होते गालों पर वो बेयकीनी से हाथ रखे रोने में मसरूफ थी। उसने अपनी मुसीबत को खुद आवाज दी थी, तुम तो ऐसे गुस्सा हो रही हो जैसे रखेल तुम्हारे लिए कोई नया लफ्ज हो। मेरा नहीं ख्याल के तवाइफ में और रखेल में कोई फर्क होता है। जब तुम तवाइफ बन सकती हो तो रखेल क्यों नहीं। अहमद दुरानी तंजिया हंसते उसकी जानिब देखने लगा। मैं तवाइफ नहीं हूं। उस औरत ने मुझे अपने झांसे में फंसाया, मुझे मदद का यकीन दिलाया और मुझे अपने साथ उस कोठे पर ले गई। मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी। वो चीखते हुए अपने आप को सच्चा साबित करने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर सामने भी अहमद दुरानी था। उसका आज तक बहुत से लोगों से पाला पड़ा था। अच्छा, तो जब मैं तुम्हारे कॉलेज आया था उससे पहले उस तवाइफ ने मेरे पास तुम्हारी तस्वीरें कैसे भेज दी कि मैं वक्त गुजारी के लिए जिस पर हाथ रखूं वो मुझे देने को तैयार है। उनमें तुम्हारी तस्वीर भी थी, और जब मैंने शराफत से तुम्हारा नंबर मांगा तो तुमने सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया। तुमने थप्पड़ मारकर खुद अपने लिए ये जहन्नुम खरीदी है, अब खुद भुगतो। उसने सीरत को जोर से धक्का दिया। उसका सर चारपाई पर जा लगा, मगर इस बात की अहमद दुरानी को क्या परवाह थी। वो उससे भी बड़ी चोटें सह चुका था और यह उसके लिए मामूली बात थी। वो कमरे से निकल गया। उसका दिमाग खराब हो चुका था। गुस्से से उसकी आंखें लाल होने लगी। वो जब्त की आखिरी हदों को छू रहा था। उसके कान साएं साएं कर रहे थे। जब से सीरत ने उसे माँ बहन के रखेल होने का ताना दिया था वो उसी वक्त अपने होशो हवास खो बैठा था। उसकी बहन भी तो बगैर किसी को इत्तला किए जलाल कुरैशी की बनकर रह रही थी। सिर्फ अपनी मोहब्बत को पाने के लिए वो उसी दिन मर गया था जब उसे भी कहीं उसकी माँ बहन का जिक्र आता उसके सामने वही मंजर घूमने लगता जो 10 साल पुराना था, मगर हमेशा उसके जख्म ताज़ा कर देते। वो कमरे में तो कुछ और सोच कर गया था, मगर वापसी पर गुस्से से उसका दिमाग खौलने लगा। वो गुस्से और बेबसी में खुद पर जब्त करते कार में बैठा और फिर उसकी कार बगैर किसी मकसद के सड़कों पर घूमने लगी। जब भी उसे गुस्सा आता वो इतनी रैश ड्राइविंग करता कि उसके खिलाफ पुलिस वाले भी कुछ ना कर पाते। कितनी बार उसका एक्सीडेंट होते होते बचा था, मगर गुस्से में खुद पर काबू पाने के लिए उसके पास यही वाहिद हल था। सारी रात वो बेमकसद सड़क पर गाड़ी दौड़ाने के बाद जब हवेली पहुंचा तो सुल्ताना बेगम परेशानी से लॉन में टहल रही थी। वैसे तो अहमद रात के 10 बजे तक घर आ जाता था, चाहे जितना भी मसरूफ क्यों ना हो, क्योंकि वो अपनी माँ का हुक्म नहीं टाल सकता था। 10 बजने के बाद जब वो घर ना आया तो सुल्ताना बेगम को परेशानी ने आ लिया। वो जानती थी कि वो कहाँ होगा। यकीनन बेमकसद सड़क पर गाड़ी दौड़ा रहा होगा। वो उसकी माँ थी, जानती थी कि उसे किस बात पर गुस्सा आता है। यकीनन उसकी बहन का किसी ने उसके सामने जिक्र कर दिया होगा। वो दुनिया में सबसे ज्यादा औरत जात से नफरत करता था, मगर सुल्ताना बेगम से उसकी मोहब्बत मिसाली थी। वो उसके वालिद की दूसरी बीवी थी, मगर वो जो औरतों की इज्जत करता था उसमें भी सुल्ताना बेगम का हाथ था, वरना उसकी बहन ने जो उसके साथ किया वो औरत जात पर एतबार खो चुका था और उसे एक ही निगाह से देखा करता। उसकी बहन जोरा जो एक शख्स को पाने के लिए उसकी रखेल बनने को तैयार हो गई थी, उसने भाई का मान तोड़कर जलाल कुरैशी के साथ उसके फार्म हाउस पर रहना शुरू कर दिया। और वो जानता था कि जलाल कुरैशी उससे इस्तेमाल कर रहा है, मगर उसकी बहन ने इस पर एतबार नहीं किया
और अपने भाई को धुतकार कर जलाल कुरैशी के साथ रहना पसंद किया। 8 साल हो गए थे उसकी बहन को जलाल कुरैशी के साथ रहते, मगर अभी तक उसने ज़ारा के साथ निकाह नहीं किया था। जलाल कुरैशी की मोहब्बत पाने के लिए ज़ारा रखेल बन गई थी और उसे इसका बात का बहुत अफसोस था। उसकी माँ ने उसके बाप से तलाक लेकर किसी और से शादी कर ली। वो छोटा था जब खानदान के लोगों के ताने सहते सहते बड़ा हुआ। उसने अपनी बहन को बहुत मोहब्बत दी ताकि उसे किसी और की मोहब्बत की ज़रूरत ना पड़े, मगर उसकी बहन ने भी इसे धोखा दे दिया। वो उसे छोड़कर चली गई। तब से उसे लगने लगा कि औरत इज्जत से ज़्यादा मोहब्बत को चाहती है। वो बीवी बनने से ज़्यादा रखेल बनने में दिलचस्पी रखती है। वो तो उसी रोज़ मर गया था जिस रोज़ उसकी माँ ने यह एतराफ़ किया था कि ज़ारा का बाप कबीर दुरानी नहीं बल्कि हाशिम खान है। वो छोटा था मगर बातें समझता था। लोगों ने उस मासूम बच्चे पर ऐसे ऐसे ताने कसे कि वो अपनी मौत आप मरने लगा। वो अंडरवर्ल्ड का डॉन, जिसके बायस इस मुल्क के बहुत से खुफिया मामलात तय किए जाते थे, वो उन सब में मुलव्विस था। पुलिस के पास उसके खिलाफ सबूत थे, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अहमद दुरानी के बारे में कुछ बोल सके, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो भी उसके खिलाफ कदम उठाने की कोशिश करता है उसे खुदकुशी करनी पड़ती है, क्योंकि अहमद दुरानी किसी को मार नहीं सकता मगर मरवा ज़रूर सकता है। अभी भी वो अपने कमरे में जाकर बैठा था जब सुल्ताना बेगम परेशान होते उसके कमरे में गई, वो जो खुद पर जब्त किए था। सुल्ताना बेगम को देखते ही उनकी गोद में सर रखकर वो 30 साला मर्द किसी बच्चे की तरह रोने लगा। वो अपनी बहन को मार देना चाहता था, मगर कभी उसकी हिम्मत नहीं हुई थी, क्योंकि उसने सबके सामने कहा था कि वो आज अभी से उसे अपने भाई का मानने से इनकार करती है। उसने सुना था बेटी माँ का अक्स होती है और उसने आज देख भी लिया था। काफ़ी देर सुल्ताना बेगम से बातें करने के बाद उसे अपना दिल हल्का होता महसूस हुआ तो वो बेड पर ही सो गया। सुल्ताना बेगम उसके सर में हाथ चलाने लगी। वो जानती थी अगर कभी भी उसे उनकी हकीकत मालूम हो गई तो वो उससे नफरत करने लगेगा, और वो उस दिन से डरती थी जिस दिन उसकी असलियत अहमद दुरानी के सामने आ जाएगी। वो अपने उसूलों का पक्का अपनी माँ को भी नहीं छोड़ेगा, जिसने उसे उसकी सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार किया था। वो सोकर उठा तो सुल्ताना बेगम अभी तक उसके बालों में हाथ चला रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई। तभी सुल्ताना बेगम कहने लगी, कौन है वो लड़की? उसे वहाँ वीराने में क्यों रखा है? यहीं ले आओ। अगर पसंद है तो बता दो, मैं तुम लोगों की शादी धूमधाम से करा दूंगी। इस बात पर एक बार फिर गुस्सा उसे गालिब आने लगा। वो जल्दी से उठा और बड़बड़ाते हुए कहने लगा, माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता है ना मुझे औरत जात से कितनी नफरत है। तभी सुल्ताना बेगम कहने लगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तुम्हारे मोबाइल में मैंने उसकी सारी तस्वीर देख ली हैं, इसलिए मुझसे मत छुपाओ। मेरे कहने पर उस लड़की को यहाँ ले आओ, मैं इसके अलावा और कोई बात ना सुनूं। सुल्ताना बेगम ने प्यार से हुक्म चलाते अहमद की तरफ देखा। वो समझ नहीं पा रहा था कि सुल्ताना बेगम को कैसे समझाए कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता। उसे तो वो अपनी जिद की वजह से लाया है। उसका बाप उसे एक कोठे वाली के हाथों बेच रहा था, इसने उस पर एहसान करते हुए उसे खरीद लिया। लेकिन उसे मालूम था एक बार सुल्ताना बेगम को जिस बारे में इल्म हो गया और उन्होंने जो हुक्म कर दिया वो अपनी मनवा कर ही रहती थी। मजबूरन उसे फरखंदा बेगम को फ़ोन करके ये कहना पड़ा कि उस लड़की को हवेली ले आओ। वो कभी भी ऐसा नहीं चाहता था, मगर सुल्ताना बेगम के कहने पर वो मजबूर हो गया। उसने आज तक अपनी माँ का कहा नहीं टाला था, अब वो कैसे अपनी मनमानी करता, जबकि उसके नज़दीक इस लड़की की कोई अहमियत नहीं थी। वो तो बस अपनी माँ को खुश करने के लिए उसका हुक्म का पास रख चुका था। 2 घंटे के बाद ही सीरत हवेली में मौजूद थी। जैसे ही सुल्ताना बेगम से मिली, हैरान रह गई। उसे लगा जैसे इस औरत से वो पहले भी कहीं मिल चुकी है, मगर हवेली में पहला दिन था और वो सुल्ताना बेगम को जानती नहीं थी, इसलिए उसने खामोशी इख्तियार कर ली। हालांकि वो उससे प्यार से बात कर रही थी। उम्र में वो उसकी माँ के जितनी थी। शायद इन्हें देखकर सीरत को अपनी माँ याद आ गई थी,
इसी लिए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे पहले भी कहीं देखा है। अभी वो सीरत से मिली ही थी जब उसे दूर से अहमर आता दिखाई दिया। उसने सीरत को ऐसे नजरअंदाज किया जैसे वो वहां खड़ी भी नहीं है। सीरत को बहुत बुरा लगा। पहले ही वो उसे नफरत करने लगी थी और अब वो उसे गुस्सा दिलवाने के लिए ये काम कर रहा था। जवाबन सीरत ने भी उसे नजरअंदाज कर दिया। अम्मा, आइंदा आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, घर का सारा काम यही करेगी। अहमद ने सीरत को जताते हुए सुल्ताना बेगम को जवाब दिया। मैं कोई मुलाजमा नहीं हूं और आपने ही तो अपनी अम्मी को बताया है कि मैं आपके दोस्त की बहन हूं, तो मेहमान से कौन काम करवाता है। उसने तंजन जुमला कहते हुए वहां से जाना चाहा था जब अहमद ने कहा, आप मेरे लिए कोई मेहमान नहीं हैं, और दूसरी बात, वो मेरा दोस्त नहीं, मेरा मुलाजिम है, और तीसरी बात, मुझे मुखातिब करने से पहले सोच लेना, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। तुम जैसी लड़कियों को मैं मुंह लगाना वैसे भी पसंद नहीं करता, समझी? अब दफा हो जाओ यहां से और फरखंदा माई के साथ जाकर हवेली के काम संभालो, और मैं तुम्हें आइंदा यहां फारिग बैठा ना देखूं। मैं यहां तुम्हें इसलिए नहीं लाया। जाओ यहां से, दोबारा मेरी नजरों के सामने मत आना, वरना वह तुम्हारा वो हाल करूंगा कि सारी दुनिया देखेगी। पहले पहल वो बहुत आराम से बात कर रहा था। उसे फिर से कल वाली बात याद आने लगी। उसने सोच लिया था कि वो जलाल कुरैशी को ठिकाने लगा कर रहेगा। अचानक उसे बहुत गुस्सा आया था। वो अपनी मां का लिहाज किए बगैर सीरत को इतना कुछ कह चुका था। अपनी तरफ से उसके साथ नरमी बरत रहा था, मगर सीरत रोते हुए वहां से चली गई, क्योंकि उसे इतनी ज्यादा बेइज्जती की उम्मीद नहीं थी। पहले उसके बाप ने उसे धोखा दिया और अब अहमद के रवैये से उसे बहुत दुख पहुंचा था। वो फरखंदा माई के पास आ गई, जो उसे हवेली के इंतजामात समझाने लगी। सारा दिन उसका काम में गुजर गया। वो अपने आंसू छुपाते हुए खुद को मसरूफ रखे हुए थी। सारी हवेली के मुलाजमीन जानते थे कि आज एक नई मुलाजमा आई है। उसे लफ्ज़ मुलाजमा बहुत चुभ रहा था, मगर वो मजबूर थी। उसके पास अपनी इज्जत को महफूज रखने का और कोई ठिकाना नहीं था। उसे लगा अहमद दुरानी रखेल वाली बात भूल चुका है। ये मुलाजमा वाला काम भी ज्यादा मुश्किल नहीं था। शाम को जब वो कपड़े धो रही थी, अहमद दुरानी के कपड़े लिए फरखंदा माई वहां आ गई, जिनसे गोबर की बदबू आ रही थी। शायद वो भैंसों के फार्म पर गया था, तभी कपड़े गोबर की बदबू से महक रहे थे। मगर वो वहां क्यों गया था? उसे हैरत हुई। गोबर देखकर उसकी हवास जाते रहे। उसकी बदबू उसके नथनों से टकरा रही थी। उसे गुस्सा आने लगा। वो ये कपड़े नहीं धोना चाहती थी। उसने फरखंदा माई की तरफ देखा, जो उसकी हालत समझ चुकी थी, मगर मजबूर थी। कपड़े रखकर वो वहां से चली गई। उसे मतली सी होने लगी। उसने एक हाथ से कपड़े पकड़े जिन पर गोबर लगा था और जल्दी से बाल्टी में रखकर भाग गई। अहमद ने राजदाना तरीके से जलाल कुरैशी को ठिकाने लगा दिया और अपनी बहन को लिए हवेली में दाखिल हुआ। बड़े हॉल में चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। सीरत बहुत डरी हुई थी। उसे पहली बार अहमद दुरानी से खौफ आ रहा था। उसने फरखंदा माई को बुलाया और अहमद के कपड़े धोने से इनकार कर दिया और बगैर उसका जवाब सुने खाना खाने किचन में जाने लगी। सीरत, कपड़े तो तुम्हें धोने पड़ेंगे। छोटे बाबा आज बहुत गुस्से में हैं। पहले ही उनकी पसंदीदा गाय मर गई है और उसी को ठिकाने लगा कर आ रहे हैं। अगर तुमने उनका कहा ना माना तो फिर मुझे मत कहना। फरखंदा माई ने सीरत को समझाते जवाब दिया, मगर सीरत ने फरखंदा माई की बात नजरअंदाज कर दी, जैसे उसने सुनी ही ना हो। रात के 10 बज रहे थे। उसकी कमर में शदीद दर्द था और रो रो कर आंखें लाल हो रही थी। उसने अपने लिए खाना गर्म किया ही था जब अहमद गुस्से से तन फन करता किचन में दाखिल हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम को इनकार करने की? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैंने तुम्हें रखेल बनाकर नहीं रखा। इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम मुझ पर हुक्म चलाओगी या मेरी बराबरी करोगी। तुम्हारी हैसियत इस घर में मुलाजमा की भी नहीं बनती थी, मगर मैंने ये सिर्फ अपनी मां के लिए किया है, समझी तुम? अभी और इसी वक्त मेरे लिए चाय बनाओ और मेरे कमरे में दे जाना।
وہ شدید غصے میں تھا. اس کی آواز کچن میں گونج رہی تھی. سارے دن کی تھکی ہاری سیرت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اس سے اچھی زندگی تو وہ اپنے باپ کے گھر گزار رہی تھی. کم از کم اس پر اس طرح حکم چلانے والا یا سب کے سامنے ذلیل کرنے والا تو کوئی نہیں تھا. روتے ہوئے اس نے کھانا وہیں رکھا. چائے بنا کر جیسے ہی احمر کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ احمر کمرے میں نہیں تھا اور اس کے بیڈ پر جو لیپ ٹاپ پڑا تھا اس پر جو ویڈیو چل رہی تھی اس نے سیرت کو حواس باختہ کر دیا. اس ویڈیو میں احمر نے جلال قریشی کو کتے کی موت مارا تھا. وہ اتنی ڈر چکی تھی کہ چائے کی ٹرے اس کے ہاتھ میں کانپنے لگی. دروازہ کھلنے کی آواز سے متوجہ ہو کر احمر ڈریسنگ روم سے باہر نکلا تو سیرت کو وہ ویڈیو دیکھتے ہوئے پایا. اسے غصہ آنے لگا کہ وہ بغیر نوک کیے اس کے کمرے میں کیسے آ گئی. کیا کر رہی ہو؟ تمہیں مجھ سے پوچھے بغیر میرے کمرے میں کیسے داخل ہوئی؟ احمر نے جملہ اتنی اونچی آواز میں ادا کیا کہ ڈر کے مارے سیرت کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ کر نیچے گر گئی. اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی تھی. احمر اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا جو اس کی وجہ سے برے طریقے سے ڈر گئی تھی. اس نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لیں اور کانوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا. اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا. ایک پل کو تو احمر اس پر ترس آیا مگر دوسرے ہی پل میں اس پر وراثت میں ملا ہوا غصہ غالب آنے لگا. جاؤ اور میرے لیے دوسری چائے بنا کر لاؤ. اگر تم نے 5 منٹ میں چائے میرے کمرے میں نہ پہنچائی تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی. جاؤ یہاں سے. احمد نے چلاتے ہوئے سیرت کو کہا تھا تو وہ فوراً بھاگتے ہوئے وہاں سے جانے لگی. جب چپل نہ پہننے کی وجہ سے کانچ کا ٹکڑا اس کے پیر میں چبھا تھا وہ بغیر اس چیز کی پرواہ کیے بھاگتے ہوئے کچن میں چلی گئی. احمد نے جان بوجھ کر یہ جملے ادا کیے تھے. اسے پتا تھا سیرت پلٹ کر جواب ضرور دے گی. وہ پہلی عورت تھی جو اس سے بالکل ڈرتی نہیں تھی. اگر ڈر لگ بھی رہا ہو تو جواب دینے سے باز نہیں آتی تھی. چائے بنا کر وہ اس کے کمرے میں واپس آئی تو اس کو دیوار کو گھورتے ہوئے مسکراتے پایا. سیرت کو اس پر بہت غصہ آیا. شاید اس کو سیرت کو چڑھانے میں بہت مزہ آتا تھا اور وہ جان بوجھ کر یہ سب کر رہا تھا. وہ غصے سے بھری ہوئی احمر کی طرف آئی. وہ جو خیالوں میں مسکراتا رہا تھا اس کو دیکھتے ہی تاثرات سرد کر لیے. اگر تم نے آئندہ میری نافرمانی کی یا پھر میرا کوئی بھی کام کرنے سے انکار کیا تو یاد رکھنا میں تمہیں اس گھر سے نکال باہر کروں گا. ویسے بھی تم جیسی عورتوں کا کوئی بھروسہ نہیں. اپنے گھروں میں تم جیسیوں کو پناہ دینے کا مطلب ہے اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارنا. اس کے لہجے کی حقارت سیرت کو بہت برے طریقے سے محسوس ہوئی. اس کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا پھر بھی اسے باتیں سننے کو مل رہی تھی. سیرت کہنے لگی تمہارا کیا مطلب ہے مجھ جیسی عورت سے؟ سمجھتے کیا ہو تم؟ دودھ کے دھلے ہو یا تم جیسا پارسا انسان اس دنیا میں نہیں آیا؟ بلکہ کہیں یہ تو نہیں کہ تم اپنے آپ کو فرشتہ سمجھتے ہو؟ اس نے غصے میں جواب دیا تھا. ورنہ اگر وہ احمد کی سچائی جان جاتی تو اس کے سامنے ایک پل کے لیے بھی نہ روک سکتی. مگر وہ سچ سے انجان اس انسان سے بحث کر رہی تھی جس کی وجہ سے کالی پوشیدہ دنیا عروج پر تھی. احمد یکدم سنجیدہ ہو گیا. اس نے کہا ہاں میں خود کو موت کا فرشتہ سمجھتا ہوں. اب دفع ہو جاؤ یہاں سے. سلطانہ بیگم اس بات سے واقف تھی کہ وہ ان کی سگی بیٹی ہے. رات کے اس پہر اسے حویلی میں پوچھا لگاتے دیکھ کر ان کے دل کو بہت چوٹ پہنچی تھی. وہ فوراً اس کی جانب بڑھی اور کہنے لگی بیٹی تم ابھی تک کیوں جاگ رہی ہو؟ یہ کہتے ان کی آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئی. آنٹی وہ دراصل مجھ سے یہاں چائے گر گئی تھی تو وہی صاف کر رہی تھی. سیرت نے سعادت مندی سے جواب دیا. میں احمد کی بھی امی ہوں اور تمہاری بھی. میں جانتی ہوں وہ میری وجہ سے تم سے شادی کا خواہش مند ہے. انہوں نے یہ بات بہت رازدارانہ انداز میں کی تھی مگر یہ سنتے ہی سیرت کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. میرے کمرے میں آؤ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے. سیرت چپ چاپ اس کے کمرے میں چلی گئی. تھوڑی دیر بعد احمد بھی وہیں آ گیا. میں تم دونوں کو اپنی زندگی کا ایک سچ بتانا چاہتی ہوں. میں احمد کی سگی نہیں سوتیلی ماں ہوں جبکہ سیرت میری سگی بیٹی ہے. میں بازار گئی تھی مجھے اغوا کر لیا گیا. یہ عورتوں کی بہت بڑی اسمگلنگ تھی اور اس سب کے پیچھے احمد کے والد کبیر درانی کا ہاتھ تھا. میرے شوہر فرقان احمد انہی کے ہاں ملازم تھے
वो नहीं जानते थे कि उनसे क्या काम करवाया जा रहा है। जब मुझे अगवा किया गया तो मैं वहां से भाग निकली। फुरकान अहमद के पास आई तो उसने ये कहकर मुझे घर से निकाल दिया कि मैं किसी और के साथ भाग गई थी और अब मुंह काला करके वापस आई हूं। इसलिए उसने मुझे घर में कदम भी न रखने दिया। इस बात ने मुझे इतना दुख पहुंचाया कि बेमकसद सड़क पर घूमने लगी। तभी मुझे सड़क पर भागता हुआ एक बच्चा मिला। वो कोई और नहीं, अहमर था। इसकी माँ इसे छोड़कर जा चुकी थी और वो नींद में से जागा था। उसे लगा उसकी माँ तो उसको छोड़कर जा चुकी है और खुदा से वो जो दुआ मांगकर सोया था कि उसकी माँ, खुदा ने मेरी सूरत उसे उसको लौटा दी। वो बच्चा बज़िद था कि मैं उसके साथ चलूं। मैंने इससे बहुत प्यार से बात की थी। शायद वो इसीलिए मेरी तरफ मुतवज्जो हो गया था। यहाँ आई तो कबीर दुरानी फौरन जान गए कि मैं वही लड़की हूँ जो उन्हें धोखा देकर भागी थी और मैं जानती हूँ कि वो लड़कियों की स्मगलिंग कर रहे थे। उनकी बीवी की बेवफाई ने उन्हें दुख पहुंचाया था। उन्होंने उसके बाद सारी दुनिया से ताल्लुक तोड़ लिया और सारे बुरे काम छोड़कर नया बिजनेस शुरू कर लिया। मैं काफ़ी अरसे तक अहमर की आया के तौर पर रही। वो मासूम बच्चा जो अक्सर नींदों में डर जाता, अब मैं उसकी माँ के फराइज सरंजाम दे रही थी। एक रोज़ कबीर दुरानी मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे निकाह की दरख्वास्त की तो मैंने मंजूर कर ली, क्योंकि मेरा शौहर तो मुझे कब का तलाक दे चुका था। बगैर सच्चाई जाने ही उसने मुझे घर से निकाल दिया था। मुझे मालूम है सीरत मुझसे नफरत करती है और शायद अहमर भी मुझसे करने लगे, मगर मैं जान चुकी हूँ कि वो सच्चाई से वाकिफ है और वो मेरी ही वजह से सीरत को यहाँ लाया है। बेटा, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ, मगर मेरी सच्चाई जानने के बाद तुम मुझसे नफरत करोगे जिसे तुम बाकी औरतों से करते हो। मुझे माफ कर देना। वो रोते हुए अहमर के आगे हाथ जोड़ गई। मैंने आपको अम्मी कहा नहीं, समझा भी है। आपका जो मुकाम मेरे दिल में है, सारी दुनिया की ताकत भी उसमें कमी नहीं ला सकती। और आप गलत नहीं थी, बल्कि आप तो साथ तो मेरे वालिद ने गलत किया था और मैं सीरत को पसंद करता हूँ और इसी से शादी करना चाहता हूँ। मगर मैंने जितने भी बुरे अमाल किए हैं, मैं नहीं चाहता कि वो कभी सीरत के सामने मकाफाती अमल बंद कराएं। इसीलिए शादी से डरता हूँ। आपकी खुशी के लिए इसे मैं यहाँ लाया। अगर आप चाहती हैं कि मैं इससे शादी कर लूँ तो मैं कर लूँगा, मगर मैं आपको दुखी नहीं देख सकता। वो औरत जिसने मेरा हर गम बांटा, मेरी गमी और खुशी में मेरी शरीक रही, मैं उसे अफसरदा कैसे देख सकता हूँ। ये कहकर अहमर सुल्ताना बेगम से लिपट गया। सीरत के कान साएं साएं कर रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। इतनी बड़ी हकीकत जानने के बाद उसे वक्त चाहिए था इन सब बातों को समझने के लिए। वो चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली आई। सुल्ताना बेगम ने अहमर का हाथ पकड़ लिया और उसे कहा कि उसे वक्त दो। उसे बहुत बड़ी सच्चाई पता चली है। सारी जिंदगी उसका बाप उससे नफरत करता रहा और आखिर में दोस्त के कहने में आकर उसे बेच डाला। उसे वक्त तो दो, वो चंद दिनों में ठीक हो जाएगी। वो मेरी बेटी है, मैं उसे समझती हूँ। सुल्ताना बेगम की बात सुनकर अहमद ने सर झुका लिया और सीरत के जवाब का इंतजार करने लगा। जब भी अहमद उसके सामने आता, सीरत कहीं छुप जाती। एक रोज अहमद सबर को भलाए ताक रखते सीरत के कमरे में चला गया, जहां वह सोफे पर बैठी मूवी देख रही थी। अचानक अहमद को अपने कमरे में देखकर हड़बड़ा गई और जल्दी से खिड़की के पर्दे के पीछे छुपने की कोशिश करने लगी। अहमद उसके सामने खड़ा हुआ। उसने खुद को पर्दे से ढका हुआ था। मैं तुमसे कोई बहस करने नहीं आया। मुझे सिर्फ एक बात बता दो कि तुम मुझसे किस खुशी में छुपती फिर रही हो। अहमद ने लाख चाहा कि उसका लहजा सर्द ना हो, मगर वो जब्त करके थक चुका था, इसीलिए उसके कमरे में चला आया था। क्योंकि मुझे आपसे शर्म आती है। आप जाएं यहां से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ये कहकर सीरत चुप हो गई। सीरत उसकी इस बात पर अहमद मुस्कुराने लगा, लेकिन फौरन से पहले अपने तासुरात छुपाते मसनूई गुस्सा करते कहने लगा, मगर तुम्हें मुझसे शर्म क्यों आती है? पहले तो नहीं आती थी। पहले तो रात के 10 बजे मेरे कमरे में आ जाती थी, और अब तुम्हें किस चीज से शर्म आ रही है? आप चुप रहें। मैं अपनी मर्जी से नहीं आई थी। आपने चाय का बोला था, मैं सिर्फ इसीलिए आई थी, समझे? सीरत को उसकी बात पर गुस्सा आ गया था। बुलाया उसने था और अब उस पर इल्जाम लगा रहा था कि वो खुद आई थी।
अच्छा जो भी है, मुझसे छुपने की जरूरत नहीं। अगर मैंने तुम्हें हवेली में ना देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें सारी जिंदगी के लिए इसी कमरे में कैद कर दूंगा, फिर छुपती रहना इन पर्दों के पीछे। उसने गुस्से से कहा था। तभी सीरत कहने लगी, अम्मी ने कहा है कि शादी तक हम दोनों एक दूसरे से पर्दा करें। सीरत ने शर्माते हुए इकरार किया था। अहमर को तो पहले अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया, मगर जैसे ही उसने ये सब सुना, मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई, मगर उसने जाहिर होने नहीं दिया। सीरत ने जल्दी से दुपट्टे से मुंह छुपाया और धक्का देते हुए बाहर चली गई। होठ संभालते हुए अहमर पहली बार यूं खिलखिलाकर हंस रहा था। उसने अहमर को बाहर निकालकर अंदर से कुंडी लगा ली। सुल्ताना बेगम ने अहमर को हंसते देखा तो दिल ही दिल में उन्होंने बेटे की नजर उतारी थी, जो उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा अजीज था, और अब तो उनका दामाद बनने जा रहा था। 3 महीने इसी तरह गुजरे। बिलाखिर एक रोज उसने अहमर से शादी की हामी भरी, क्योंकि वो वापस अपने बाप के पास जा नहीं सकती थी, और इतने बरसों बाद उसे माँ का प्यार मिला था। वो उसे खोना नहीं चाहती थी। सुल्ताना बेगम उसके इस फैसले से बहुत खुश थी। अहमर ने सीरत को बहुत आजमाया था। उसे ऐसी बीवी चाहिए थी जो पर्दा करती हो, गैर मर्दों से बेतकल्लुफ ना हो, और सिर्फ उसी की बनकर रहे। और सीरत हूबहू वैसी थी जैसी बीवी वो चाहता था। वो उसकी आजमाइश पर पूरी उतरी थी। यही वजह थी कि वो जल्द ही उस पत्थर दिल इंसान के दिल में घर कर गई, वरना आज तक बहुत सी औरतों ने उसे अपनी तरफ माइल करना चाहा, मगर वो किसी को भी वो मुकाम न दे सका जो उसने सीरत को दे दिया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें।